Hello students, in this video we will do some numericals based on the topic that we have covered in the lecture 18th. So if you have not understood that, please go back to that lecture and watch that before doing these numericals. In that lecture we have done that parallel currents attract and anti-parallel currents repel. Okay, so you must remember that parallel currents attract and anti-parallel currents repel. So let's start with this numerical. In this numerical it is given that we have a rectangular loop of sides 25 and 10 centimeters. So let's draw a rectangular loop, and the side, this one is, let it be 25 centimeter, and this length is 15 centimeter, right? Carrying a current of 15 ampere. So this wire carries a current of 15 ampere. Let's make a direction of current. It's 15 ampere. Is placed with its longer side parallel to the long straight conductor. This one is the longer side. So this longer side is placed parallel to the long conductor. Okay, long conductor 2 centimeter apart. This long conductor is 2 centimeter apart, right? And now this is also carrying a current of 25 ampere. So what is the net force on this loop? So net force निकालना है हमने loop पे. So we have to consider these two sides first. Let's give a name A, B, C, D to a loop, right? अब ध्यान से देखिए. Now we have, let's divide this conductor into four lengths. This AB, BC, CD and DA. First talk about AD and BC. Now these two lengths are at the equal distances from this loop, right? And the current is equal and opposite. So ये दोनों जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस करेंगी बिकॉज ऑफ दिस कंडक्टर विल बी इक्वल, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन दम इज इक्वल, करंट इज ऑल्सो इक्वल, राइट? और फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला तो हमने किया ही है, दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन द करंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन दम, राइट? सो दैट इज इक्वल एंड ऑपोजिट विल कैंसिल आउट ईच अदर. सो इन दोनों की वजह से जो भी नेट फोर्स होगा वो आपस में इक्वल और ऑपोजिट है तो कैंसिल हो जाएगा, राइट? अब बारी आती है इन दोनों की. नाउ let's talk about AB first. Agar we consider AB with this conductor, now these two are parallel, right? Two parallel conductors having parallel currents in the same direction. So अभी हमने पढ़ा है last lecture में कि जो parallel current है they will attract each other, right? So because of this current and this outside conductor, this wire will attract towards it, right? Because these two currents are parallel in the same direction, right? So it will attract. And now let's talk about CD. CD में करंट इस तरफ है और बाहर वाले लेंथ में करंट इस तरफ है. तो इन दोनों में जो करंट है वो क्या है? ऑपोजिट है, राइट? तो ऑपोजिट मीन्स एंटी पैरेलल. सो एंटी पैरेलल करंट रिपेल. सो ये जो बाहर का कंडक्टर है इसकी वजह से हमने नेट फोर्स इस लूप पे निकालना है. तो इन दोनों साइड्स पे जो भी फोर्स लग रहा है वो इक्वल होगा और ऑपोजिट होगा तो कैंसिल हो जाएगा. इन दोनों में इसमें जो फोर्स लग रहा है, AB के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा. क्यों अट्रैक्टिव होगा? क्योंकि करंट जो है, मैं बार बार बोल रही हूँ, सेम डायरेक्शन में है. इसमें भी इधर जा रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, इसमें भी अलोंग एक्स एक्सिस. तो अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो फोर्स क्या होगा? अट्रैक्टिव. और इसमें बात करें CD और इस कंडक्टर की बात करें, इसमें CD में और ये जो आउटसाइड कंडक्टर है, इन दोनों में जो करंट है वो कैसा है? ऑपोजिट है. और ऑपोजिट करंट होने की वजह से ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, राइट? तो इन दोनों की वजह से रिपल्शन होगी, इन दोनों की वजह से अट्रैक्शन होगी. पास में कौन सा है? ये R डिस्टेंस, ये कम है तो ये अट्रैक्टिव होगा. अगर आपको याद होगा तो हमने करा था फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या था? For the two conductors, it is mu naught upon 4 pi 2 I1
I2, I1 क्या था, करंट इन द फर्स्ट कंडक्टर, I2 क्या है, करंट इन द सेकेंड कंडक्टर, डिवाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स। तो जिसका डिस्टेंस कम उसमें फोर्स ज्यादा, इन दोनों का डिस्टेंस कम, तो ये वाला फोर्स ज्यादा होगा। ये फोर्स कौन सा है, अट्रैक्टिव, तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। ये डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, तो इसका फोर्स क्या होगा, कम। और ये रिपल्सिव फोर्स है, तो रिपल्सिव फोर्स कम होगा, राइट। तो अब हम फाइंड आउट करें, हमें ये फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला है। अगर अकेला फोर्स निकालना है तो लेंथ इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो हम पहले ए बी और ये आउटसाइड कंडक्टर में हम फोर्स निकालते हैं। तो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला, लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। फोर्स का फॉर्मूला क्या लगेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R1 इंटू लेट्स मल्टीप्लाई द लेंथ हियर, ओके। आई एम कैलकुलेटिंग फोर्स, सो लेट्स पुट द वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू है 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू I1 कितना है, इसमें करंट कितना जा रहा है, 15 एम्पियर, ठीक है। सो मल्टीप्लाई बाय 15 और नीचे वाली वायर में से करंट जा रहा है 25 एम्पियर, राइट। और डिस्टेंस कितना है इन दोनों में, 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब ये कौन सी लेंथ लेंगे, जिस लेंथ पे हमने फोर्स कैलकुलेट करना है। तो कौन सी लेंथ पे फोर्स कैलकुलेट करना है, ए बी लेंथ पे। तो ए बी लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर थी ना, ये लेंथ कितनी है, जितनी डीसी है तो ए बी भी उतनी है, तो 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर दें, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो व्हेन यू विल कैलकुलेट द होल वैल्यू, यू विल गेट दिस वैल्यू एज 9.3 into 10⁻⁴ Newton, and you know the current is parallel, so this force will be attractive, right? So now let's calculate the force between this outside conductor and this line CD, this length CD. So force on the length CD, right? Again we apply the same formula into 2 I1 I2 upon R, right, into length। अब ये length कौन सी लेंगे, CD की length, ठीक है। So let's put the value 10⁻⁷, again 2 into I1 से फिर से 15 है और I2 कितना है, नीचे आउटसाइड कंडक्टर में 25 है, लेंथ कितनी है, 25 ही है, 10⁻⁻2। नाउ फर्क किस में पड़ेगा, सिर्फ डिस्टेंस पे। अब ये डिस्टेंस कितना है, टोटल 2 सेंटीमीटर ये था और ये 15 है, तो टोटल कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर ये है और ये 15 सेंटीमीटर है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस हुआ 17, राइट। आई थिंक मैंने यहाँ पे 10 लिया था ना, तो हम 10 ही ले लेते हैं, ओके। ये डिस्टेंस हम 10 लेते हैं, ये लेंथ हम 10 सेंटीमीटर लेते हैं, ओके। करंट की वजह से मैंने 15 लिख दिया, सो इट इज़ 10, सो लेट इट बी द सेम डिस्टेंस। तो टोटल ये अब कितना हुआ, 12, 10 ये और 2 ये, ठीक है। तो 12 हुआ, 12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2, सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट कर दिया। सो व्हेन यू विल कैलकुलेट द होल वैल्यू, यू विल गेट इट 1.5, ओके, इंटू 10⁻⁴। और ये फोर्स कैसा होगा, पहले वाला अट्रैक्टिव था, ये वाला क्या होगा, रिपल्सिव, क्योंकि करंट दोनों में क्या है, ऑपोजिट है। तो अब ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये रिपल्सिव है, तो नेट फोर्स क्या होगा, दोनों में सब्ट्रैक्शन होगा, राइट। तो नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो आउटसाइड वायर है, इस फोर्स इस वायर को अट्रैक्ट कर रही है और इस वायर को रिपेल कर रही है, तो नेट क्या करेगी, अब अट्रैक्ट होगी ये टोटल रेक्टेंगुलर लूप के रिपेल होगी, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है तो नेट ये क्या होगी, अट्रैक्ट ही होगी, राइट। तो नेट फोर्स लेकिन कितने फोर्स से अट्रैक्ट होगी, इतने से नहीं, थोड़ा कम हो जाएगा। तो नेट फोर्स कितना होगा, 9.3 माइनस 1.5 इंटू 10⁻⁴। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी नियरली 7.8 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। सो नेट फोर्स जो होगा वो क्या रहेगा, अट्रैक्टिव, फाइन। सो इस तरह से यू विल सॉल्व सच न्यूमेरिकल्स, क्लियर। Let's do one more question. In this question, it is given that a wire AB is carrying a steady current of 12 ampere. एक वायर है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वायर, इसमें से करंट कितना जा रहा है, 12 एम्पियर। अब वो इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है, नहीं पता हमें, ठीक है। लेकिन हमें इतना पता है कि इस वायर में से जो करंट है वो 12 एम्पियर है। ये एक टेबल के ऊपर पड़ी है। अनदर वायर CD, मान लीजिए वी हैव अनदर वायर, दिस वायर इज CD
विच इज कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर. इसमें से करंट कितना पास हो रहा है 5 एम्पियर एंड इट इज एट द हाइट ऑफ दिस वायर. ये वायर इससे कितनी हाइट पे है 1 mm हाइट पे है. ठीक है. और हमने क्या निकालना है कि इस वायर में से करंट तो 5 एम्पियर जा रहा है राइट. इस वायर का मास पर यूनिट लेंथ कितना होना चाहिए. क्या कितना होना चाहिए मास पर यूनिट लेंथ इस वायर में कितना हो. मतलब एक तरह से हमने इस वायर का मास निकालना है और इस वायर में करंट की डायरेक्शन भी निकालनी है. सो दैट इस वायर को अगर मैं छोड़ दूं तो ये वायर नीचे ना गिरे. इट रिमेन्स सस्पेंडेड. ऐसा कब पॉसिबल होगा दैट इट रिमेन्स सस्पेंडेड. अब इसमें इस वायर में से भी करंट पास हो रहा है, इस वायर में से भी करंट पास हो रहा है. तो अगर अब ऑब्वियसली ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई कर रही है राइट. ये फोर्स क्या होना चाहिए रिपल्सिव. तभी ये वायर इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी और अपनी पोजीशन पे रहेगी राइट. ये फोर्स कैसा होना चाहिए. पहली बात तो रिपल्सिव होना चाहिए, अट्रैक्टिव तो होगा नहीं. अगर अट्रैक्टिव हुआ तो ये अट्रैक्ट हो जाएगी और नीचे गिर जाएगी. तो इट शुड रिमेन सस्पेंडेड. तो इसका फोर्स क्या होना चाहिए रिपल्सिव. तो रिपल्सिव कब होगा. रिपल्सिव फोर्स तभी पॉसिबल है जब करंट क्या होंगे एंटी पैरेलल. जब दोनों में जो करंट है वो क्या होगा एंटी पैरेलल. तो सीधा सा आंसर है डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा मस्ट बी ऑपोजिट राइट. वायर ए बी में और जो ऊपर वायर है जो उसके ऊपर सस्पेंड की हुई है वायर, उन दोनों में जो करंट है वो क्या होना चाहिए एंटी पैरेलल. और यू कैन सिंपली से दैट द करंट इन बोथ द वायर्स शुड बी ऑपोजिट राइट. अब कितना फोर्स हो. जो ये दो वायर्स हैं इसमें अगर करंट इधर है तो इसका करंट इधर होना चाहिए, तभी ये वायर नीचे नहीं गिरेगी राइट. दूसरी बात, जो इस वायर का वेट है वो जितना फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है उसके इक्वल होना चाहिए, तभी ये वायर अपनी जगह पे रहेगी राइट. तो अगर हमने मास पर यूनिट लेंथ निकालना है, हमारे पास सिर्फ एक तरीका है कि हम ये सोचें कि जो ये इस वायर का वेट है वो इस फोर्स के क्या होना चाहिए इक्वल. वेट शुड बी वेट ऑफ दिस वायर विच इज लाइंग अबव, विच इज लाइंग सस्पेंडेड ऑन दिस वायर शुड बी equal to the force between these two wires right. अब हमें वेट नहीं निकालना है, हमें निकालना है मास पर यूनिट लेंथ. तो लेट्स डिवाइड बोथ साइड्स विद लेंथ राइट. बोथ साइड्स विद द लेंथ ऑफ दिस वायर. क्लियर. अब वेट क्या होता है mg डिवाइड बाय l अपॉन इज इक्वल टू f इंटू l. अब मेरे पास ये आ जाएगा मास पर यूनिट लेंथ. g को इधर ले जाते हैं. So m upon l mass per unit length is f upon l into g. फोर्स कितना है हमने फॉर्मूला करा है फोर्स बिटवीन द टू कंडक्टर्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन ये लेंथ पर यूनिट लेंथ राइट. लेंथ क्या है इंटू जी. ओके. यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं. म्यू ये फोर्स पर यूनिट लेंथ का मैंने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया. क्या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन L. यहाँ L से कंफ्यूज नहीं होना, L की जगह R ही लिख लो तुम. यहाँ पे R क्या आएगा ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच में. ठीक है. तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला ये हो गया मल्टीप्लाई बाय G राइट. अब सिंपली वी हैव टू पुट द वैल्यूज. जस्ट पुट द वैल्यूज हियर. यू विल गेट व्हाट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू है 10⁻⁷ मल्टीप्लाई बाय 2. I1 कितना है इसमें ऊपर वाली वायर में से 12 एम्पियर करंट है और नीचे वाली वायर में 5 एम्पियर करंट है राइट. तो लेट्स पुट द वैल्यू 12 into 5 अपॉन r. डिस्टेंस बिटवीन द वायर इज 1 mm. 1 mm मीन्स 10⁻³ multiplied by g is 10. So if you calculate the whole value you will get 1.2 into 10⁻³ अब ये हमने क्या निकाला है एक्चुअली मास पर यूनिट लेंथ आ गया हमारे पास राइट. दिस इज व्हाट मास पर यूनिट लेंथ. तो हम यूनिट्स कैसे लेंगे ये हमारे पास kg, मास इज kg पर मीटर. फाइन. सो ये हमारे पास मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू. अगर डायरेक्शन क्या होनी चाहिए दोनों में करंट की ऑपोजिट, तभी इट विल रिमेन सस्पेंडेड, अदरवाइज इट विल फॉल डाउन.